That is when he, and secondly, even Einstein, when he was lying in the bathtub in a relaxed position, only He got that thing. Exactly. Yes. Absolutely. Yes, the insight dawns upon you. yes, The light, you can feel that, the light emerging, that suddenly something happens, जो Yeah. अंदर से ज्योति अपने ही अंदर से प्रकट होती है, because you're already that. Without that relaxed state, you can't handle it. yeah, कोई बात है, पर ये क्या है कि एक बार जब जैसे a person like you makes us aware of it, and then you kind of rethink about it, you say, wow, it's so easy. Exactly. It is so easy. It is so. हाँ, it comes like that. जब पहली बार सुनते हैं लगता है बाप रे कैसे होगा क्या, but then suddenly एक समय आता है जब लगता है नहीं तो बहुत easy है. अभी देखिए, अब आपके मुंह से ये निकलने लगा, मेरे शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं प्रभु. for You a are day the or two, one it will person be who easy. continuously said, oh, but this is very difficult. After And 2 now days you are after- saying it. See the No, I'm change not- that has happened in us. I tell you. I Thanks to still you. find it By the difficult right only. ज्ञान, जो right Because- ज्ञान हमको मिला है, उससे एक इतना जमीन आसमान का चेंज अपने अंदर आया. I agree. मैं हमेशा बोलती थी बहुत difficult. हाँ. मैं अभी 4 तो बज रहे हैं, अपने लोग शुरू करते हैं. So let us start our prayer after one Om chant. Take a deep breath in. Om. Asato ma sakamaya. Tamaso ma jyotirgamaya. Mrityorma amritangamaya. Om Shanti Shanti Shanti. So we will begin with the topic of surrender from Gurudev's book, Celebrating Silence. But I want to tell you one thing, that we have done this topic of surrender earlier. And so, and Gurudev has explained it very well. And so we will read through those pages, because we have 4 verses of Atma Bodh to complete today. And therefore, you mulch on it, let there be some jugali happening in your mind. If there are any questions, save it for next time when we meet before the 4 o'clock time. From 3:45 to 4 o'clock, we can address your questions. So just now we will read surrender, and it is the second page of surrender. So please come to the second page, and we will read 4 pages. So let's read on. Who will start? Who wants to start? I can start, Amla Bhabhi. Okay, let's you please start. Most of us come into this world with the seed in us. It's not okay. All our lives we try to correct events, people, and situations. But how much can you correct? It is like trying to rearrange the clouds in the sky. This seed does not allow you to be happy, to smile from your heart, to be loving and lovable. It is there all the time like a thorn, irritating. This seed, it's not okay, brings you back into this world again and again. How do you burn this seed? First, recognize that it is there. This can happen in deep introspection and meditation. Sometimes you feel that your body, mind, intellect, memory, and ego are not okay. You justify them or find fault with them. But these are also part of the world. Acknowledge what you see as an imperfection and offer it to the divine. Have faith in the infinite organizing power of the supreme intelligence and have sincere feeling
Let thy will be done. Then the seed, it's not okay, gets burnt. Thy will be done is a state of total contentment, a state of just love. We need not even make it a statement about the future. Thy will alone is happening now. Question. So everything that is happening is God's will? Yes, including the thought, this shouldn't be happening. So nicely put. Yeah. So now let's read the next page. We'll read. Yes, Amlati, shall I read? Okay. Roxana. The main impediment for many seekers on the path is that they want to surrender. Do not say that you want to surrender. Just know that you already are surrendered. Wanting to surrender becomes an impediment on the path. This is like a child saying to his mother, I want to love you. No child ever says this. Love is self-evident. Surrender is not an act. It is a state of your being. Whether you acknowledge it or not, surrender is there. The wise wake up and see this. The unwise take a longer time. Know that you have no choice. You are in a state of surrender deep within you. This was in Chandigarh, March 23rd, 2000. Shall I continue? Yes, finish this page. Yeah, Shema. Right, Shema. Is there Should I more on con- this page or is your page over? Yes. No, there is more on this page. So finish the page. Yes. Some people say, surrender and let God do everything. Others say, it's my responsibility. Devotees often say, let thy will be done. Then take it easy getting to the goal. We have to make this clear. Surrender is saying, let thy will be done, and thy will is for you to take responsibility for the whole world. This may appear contradictory, but I tell you, surrender and responsibility go hand in hand. The more you surrender, the more responsive you become. One who is irresponsible cannot surrender. Why is someone irresponsible? They are lazy or fearful or both. If you are lazy or fearful, you cannot be surrendered in love. Yes. Beautiful. Total responsibility is total surrender. It is a little hard to chew, but this is the truth. Suppose you are surrendered to the knowledge. That means you are committed to sharing it with others. And you take responsibility to see that it flourishes. Responsibility is the dynamic expression of life in the present moment. When you take responsibility and you find blocks, remember surrender. When you get shaken, remember that the basis of responsibility is surrender. This releases you from the weight of doership and gives you strength to move ahead. Surrendering and taking responsibility without doership is the skill of the wise. Total irresponsibility is impossible for you. Limited responsibility tires you and makes you weak. Unlimited responsibility empowers you and brings you joy. Set a time-bound goal and give a direction to your life force. This was in United States in 1996. Very beautiful. Very, very beautiful. Manju, will you complete this? Now we have 1.5 pages. Yes, I can read. Yes, please. Self-reliance. Is it okay from here? Yes, yes, yes. Self-reliance requires enormous courage, but surrender takes less courage. A person who cannot surrender cannot be self-reliant.
Just as $50 contains $10, so self-reliance contains surrender. If you do not have $100, you cannot have $1,000. If you do not have enough courage to surrender, then it is impossible for you to be self-reliant. People who are afraid to surrender are simply fooling themselves, because even a little fear is detrimental to self-reliance. Often people think that surrender is a way to escape from responsibility, so they end up blaming the divine for all their problems. In fact, true surrender is taking total responsibility for everything. How? Take full responsibility and then pray for help. Surrender eventually leads you to self-reliance, because there is nothing other than the self. This was in Switzerland, 96. Yes. I have nothing more on this page. Okay. Is it okay? Lakshmi ji or Lakshmi Jivrajka ji will read? Yeah, I will read. Yeah. Okay. In the word Bhakti, there are 4 letters. Bha, Ka, Ta. And I, Bha, means fulfillment and nourishment. Ka is means of knowing. Ta means redeeming, saving, salvation. I is Shakti or energy. So there are 4 components to Bhakti. Fulfillment and nourishment, a means of knowing, salvation and energy. Bhakti nourishes you. Bhakti is right knowledge, the means of knowing. When Just one second, huh? Shall I read the first paragraph again? Okay. In the word bhakti, there are 4 letters: bha, ka, ta, and e. You said ma, na? That's why I'm reading. I said Bha, I. ka, ta, and e. Hmm. Bha means fulfillment and nourishment. Bha, जैसे भोग रहे हैं, fulfillment and nourishment. Ka means knowing. Ta means saving or salvation, मतलब तर गए, तारण हो गया, तर गए संसार से. And E means शक्ति, energy. Very nice. गुरुदेव ने यहाँ पर कंप्लीट मिक्सचर किया है हिंदी और इंग्लिश का. Excellent. का को उन्होंने knowing बता दिया. Because the letter starts knowing means from KN ना. तो इसलिए भ क becomes the knowing aspect of you, the consciousness aspect. और ta means तर गए और E means the energy. Very nice. Very nice. हाँ, आगे चलिए. अभी फिर से पढ़िए. अभी next paragraph. So there are 4 components. यहाँ से करिए. Fulfillment and nourishment, a means of नहीं, so there are 4 components. यहाँ से करिए. हाँ, अच्छा वहीं से कर रहे हैं. ठीक है. So there are 4 components to bhakti: fulfillment and nourishment, a means of knowing, salvation and energy. Bhakti nourishes you. Bhakti is the right knowledge, the means of knowing. When bhakti is there, doubt do not come. Bhakti saves you. Bhakti gives you the most energy. Bhakti contains the seeds of all these qualities. All the emotional upheavals one goes through, because one does not know bhakti. A river has 2 banks and allow water to flow in a particular direction. In a flood, water is separated all over. Water is scattered. Scattered all over. Sorry, मेरी English थोड़ी weak है. कोई बात नहीं है, इसीलिए आपसे कहा है पढ़ने के लिए. When your emotions get flooded everywhere, your brain is in a mess. When all intense feeling flow in one direction, that is most powerful, that is bhakti. A sign of intelligence is bhakti and surrender. Yes. Thailand, Caribbean, January 15, 1997. Yes. तो जैसे भक्ति is a state of mind, it is feeling devoted towards everybody. It is feeling that I am so little, and everybody on whom I am setting my eyes, it is divinity personified, divinity manifest.
That's when I feel really humble. That is when bhakti flows from within. And it is the same way about surrender. That is also a state of mind. When we say कि I will surrender, that is ego on the contrary, because what is there that you can surrender? The main thing is for us to realize we are already surrendered. There is nothing to which we are not surrendered. जो भी होता है हमारे ऊपर, जो भी आता है उसके प्रति हमारा सरेंडर है ही है ना. तो सरेंडर, जैसे जब हम करने को चलते हैं, then we must remember it is surrealistic. सरेंडर, जो आप करने जा रही हैं, जो रेंडर करने जा रही हैं, वो surrealistic है. There is nothing like a surrender. You are already surrendered. That's what you are. Okay? So we have completed surrender, and next time we will be on the topic of sadhana. Okay? Now we will start the Atma Bodh. So we had done 5 shlokas up to now in 2 sessions. And I just want to recount the 5 shlokas so that we are, we remember, जैसे जल्दी से एक memory कर लेते हैं. उसके पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ कि ये जो 5 श्लोक हमने करे थे, this was pertaining to how we must do our internal individualistic inquiry, internal inquiry within myself as an individual. और आपके जो आगे के 3-4 श्लोक हैं, वो हमको आउटवर्ड ले जाएंगे, हमको आउटवर्ड इंक्वायरी में लगाएंगे कि ये तो मेरा अंदरूनी मेंटल मेकअप होना चाहिए जब मैं आत्मबोध की पुस्तक या आत्मबोध के ज्ञान को अपने लिए उसके प्रति मैं एक्सपोज हूं. और अभी के 3-4 श्लोक जो हम करेंगे उसमें है कि जगत के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए. तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एंड स्ट्रेंजली we will arrive at the same point. It is like one person, 2 people starting from the same point. One is traveling completely east and the other one is traveling completely west. After 15 or so hours of flying, they will come and meet at the same point. कहने का मतलब है कि वेदांतिक इंक्वायरी जब हम करते हैं, so whether it is internalized or it is outward towards the world, we will arrive at the same point. ये एक बात आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ. दूसरी बात ये है कि आत्मबोध की पुस्तक इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इसको इतना श्रेय इसलिए दिया गया है क्योंकि इन अ वे इट इज लाइक अ पिक्चर बुक. यहाँ पर हर श्लोक के अंदर उन्होंने एक मेटाफर या एक सिमिली दी है जिसमें कि हमारी आंख के सामने एक खूबसूरत पिक्चर आ जाती है और वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाती है और हमारी समझ में भी जल्दी से आ जाती है. तो अब हम 5 श्लोक जो अभी तक हुए हैं उसकी जिस्ट कर लेते हैं और फिर 6ठे श्लोक पर आ जाते हैं. तो पहला जो श्लोक था उसमें क्या बताया था कि जिसके पाप तप के द्वारा क्षीण हो गए हैं और जो शांत स्वभाव का है और जो मुमुक्षु है, उसके लिए यह आत्मबोध का ज्ञान या आत्मबोध की पुस्तक, यहाँ पर एक पन है, ये प्रस्तुत है. ये पहला श्लोक है और इस एक श्लोक में कोई सिमिली नहीं है. This is like an introductory श्लोक. ठीक है. अब दूसरा श्लोक क्या उन्होंने दिया कि जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे आग खाना पकाने के लिए
जो डायरेक्ट साधन है वो आग है, लेकिन उसके अलावा बाकी सब सरंजाम की भी जरूरत पड़ती है खाना बनाने में। मतलब हमको पानी चाहिएगा, टोपिया चाहिएगा, उसमें पकाएंगे, है कि नहीं? तो ये सब चाहिएगा, लेकिन जो डायरेक्ट साधन है वो जैसे आग होता है, उसी तरह से डायरेक्ट जो साधन है वो ज्ञान होएगा, क्योंकि हमारे अज्ञान को नाश करना है। जिस अज्ञान की वजह से हमने अपने जीवन को उलझा लिया है, उस अज्ञान को नाश करने के लिए डायरेक्ट साधन ज्ञान ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे साधन वो उनको नहीं करना है, ये बात नहीं कह रहे हैं। दूसरे साधन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसलिए हमने वो एग्जाम्पल दिया था कि जैसे एक पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है जो कि 4 डायरेक्शन से आप अप्रोच कर सकते हैं, कितने भी डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में घुसने का दरवाजा एक है, वो एक ही वो ज्ञान है। और ये हो गया दूसरा श्लोक जिसमें उन्होंने आग की सिमिली दी है हमको। फिर उसके बाद में बोला है कि कर्म जो है वो उसका डायरेक्ट ऑपोजिट, डायरेक्ट शत्रु नहीं है अज्ञान का। अज्ञान का डायरेक्ट शत्रु कर्म नहीं है, डायरेक्ट उपचार कर्म नहीं है। कर्म करने में जब हम जाते हैं तो कई बार हम उलझते जाते हैं, अपने जीवन को उलझा लेते हैं। कर्म अच्छा करने को गए, लेकिन हमको फिर वहां पर मान और इज्जत चाहिए, है ना, और या हमको कोई भी और तरह की शोहरत चाहिए, या हमको फोटो चाहिए, या कुछ भी चाहिए हमको, तो उसमें हम उलझ जाते हैं। उसका डायरेक्ट शत्रु नहीं है। तो डायरेक्ट शत्रु क्या है? अंधकार को मिटाने का डायरेक्ट शत्रु कौन है? दीपक, ज्योति। ज्योति से अपने आप हजारों साल का अंधकार एक गुफा में जो था वो 1 मिनट में नाश हो जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है किसका? कि जैसे अंधकार को मिटाने के लिए दीपक मात्र की जरूरत होगी, और 1000 आप कोशिश कर लें, आप झाड़ू लेकर के उसको साफ करने की कोशिश कर लें, या आप उसको गाली गलौज दें, या आप डंडा लेकर के पीटें, कोई फायदा नहीं होगा। केवल जो ज्योत है, जो प्रकाश है, वो अंधकार को हटाएगा। और चौथा वर्ष था कि जब जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसको हटाने के लिए वो ज्ञान जो है, तो वो बना ही रहना पड़ेगा, तो वो भी एक तरह का मैल हो जाएगा। क्योंकि हम इतना इनफाइनाइट ब्रह्म को इस फाइनाइट माइंड में कैसे पकड़ सकते हैं? वो पॉसिबल नहीं है। तो बोले वो पॉसिबल नहीं है, ये आपका कहना राइट है, लेकिन जैसे ही अज्ञान हट जाता है, तो जैसे बादल हट जाते हैं और सूरज की रोशनी आप तक डायरेक्ट पहुंचने लगती है, वैसा आपका एक्सपीरियंस होएगा। बादल के छटने का एक्सपीरियंस और सूरज की किरणें डायरेक्ट आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, तो ये हो गया चौथा। और फिर पांचवा है, पांचवा ये वाला है कि वो जो इनफाइनाइट को हम कैसे होल्ड कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि तुमको होल्ड करने की जरूरत नहीं है, तुम ऑलरेडी वो हो, तुम ऑलरेडी वो हो। तो जिस ज्ञान को तुम इस्तेमाल करोगे वो बैठ जाएगा। जैसे फिटकरी पानी में डालते हैं तो सारी गंदगी को वो बैठा देती है और फिर बाद में खुद भी बैठ जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कटक वत, कटक रेणुवत। तो कटक मैंने इसका गूगल करा था, तो एक हर्ब है, एक पेड़ है, उसका नाम है कटक। उसके अंदर एक फल लगता है, उसका जो सीड होता है उसको पीस करके उसका पाउडर, उसकी रेणु बनाना है, उसका पाउडर जब आप पानी में डाल देते हैं तो आपकी वाटर बॉडीज क्लीन होने लगती हैं।
तो ये ऋग्वेद के टाइम से हमारे समाज को मालूम था, कटक रेणुवत। और आजकल जो कई एक एनजीओ खुले हैं, उन्होंने ये कटक को इस्तेमाल करके बहुत सी वाटर बॉडीज को साफ करना शुरू करा है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भी इस समय अपने गार्डन में के लिए भी, जिससे कि काई न जमे और कमल के फूल निकलते रहें, क्योंकि आप लोग को एक बात मालूम है कि काई जब पानी में आ जाती है तो कमल नहीं खिलता है। इसलिए उसको गोबर चाहिए कमल को, लेकिन काई नहीं चाहिए। तो काई को हटाने के लिए आपको कटक की रेणु उस पानी में डालने से वो भी, काई भी बैठ जाएगी और फिर जो पाउडर आपने डाला है वो भी बैठ जाएगा। तो मतलब आपको ये बात याद रखने की जरूरत नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। आपने एक बार समझ लिया कि कैसे ये जो है, इसकी रियलिटी जो है वो एक ही ब्रह्म तत्व है, फिर इस ज्ञान को भी भुला देना है और आप नॉर्मल नेचुरल होकर के इस जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, नॉर्मल नेचुरल। अब आता है छठा वर्ष, जिसमें कि इन्होंने मतलब अपना अपना जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ, जगत की तरफ, अपने जो फोकस है, अपनी जो टॉर्च लाइट का फ्लैश है, वो उन्होंने जगत की ओर उन्होंने डाला है। तो क्या बोलते हैं, छठा वर्ष हम लोग कर रहे हैं, आप लोग रिपीट करिएगा। संसारः संसारः स्वप्न तुल्यः हि अपने तुल्य है, राग द्वेषादि राग संकुलः संतुलः स्वकाले स्वकाले सत्यवत भाति सत्यवत् भाति प्रबोधे प्रबोधे सति असत भवेत्। सत् भवेत्। हाँ, आप लोग के पास, सबके पास वो रिटन श्लोक भी आ गए होंगे जो कि मैंने व्हाट्सएप पे भेजे थे। उसी से पढ़ रहे हैं, इसी से पढ़ रहे हैं, आपने जो भेजा था। कविता जी के पास नहीं आए हैं। कविता जी, मैं आपको भी विजडम ग्रुप पे डाल दूं क्या? डाल दीजिए। दैट विल बी बेटर। हाँ, तो सब एक संग ही हो जाएगा ना। हाँ हाँ, एग्जैक्ट। हमको भी डाल दीजिएगा। ओके ओके, वेरी गुड, यस। The world, which is full of attachments, aversion, and so on, is like a dream. यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल दिया है? Like a dream. It appears to be real as long as the dream continues, but becomes unreal when one wakes up, when true wisdom dawns. When the true wisdom dawns, then this world as we are seeing it today becomes unreal. अभी देखिए, जो एक बहुत ही बड़ा हमेशा ये सिमिली इस्तेमाल होती है स्वप्न की, जो एग्जाम्पल दिया जाता है वेदांत में, वो सपने से बहुत कुछ समझाते हैं। और वो ही मैं आज आपको उसके बहुत से फैसेट्स खोलने की कोशिश करूंगी सपने के। जैसे आत्मबोध जो है वो दुखों की निवृत्ति का मार्ग है, पर मोक्ष की इच्छा बहुत जरूरी है। आप लोगों ने सबने कह तो दिया था कि हाँ आप लोग चाहते हैं, लेकिन आप लोग डीपली एग्जामिन करिए। गुरु भी जल्दी से मानता नहीं है जबकि शिष्य बोलता है कि हाँ हमको केवल ये मोक्ष चाहिए, क्योंकि मोक्ष की जो चाह है वो बहुत ही रेयर है। कुछ लोगों ने अपना म्यूट नहीं किया है और आवाज आ रही है, इसके लिए
अब आप लोग जब रिपीट करेंगे ना, तब कुछ लोग अपना माइक खोल लीजिएगा, जिसका भी मन हो, जिसकी भी वाईफाई स्ट्रांग है, वो लोग अपना माइक खोल लीजिएगा, जो रिपीट करने में अच्छा लगे। हम लोग चाहते भोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भोग भोगते रहें और परिवार का बंधन रहे, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, और फिर भी मुझे मोक्ष मिल जाए, ऐसा हम चाहते हैं। हम स्वर्ग के सारे सुख चाहते हैं और बोलते हैं कि स्वर्ग के सुख भोगते भोगते हमको मोक्ष मिल जाए। चाहना हमारी वहां पर जुड़ी रहती है। आजकल देखिए संबंधों के बारे में अब्रॉड में कितना बड़ा बोलबाला है, रिलेशनशिप्स। तो वो लोग रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है बोलते हैं, वो है रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है हमारे वेदांत के हिसाब से भी, लेकिन असलियत जानते हुए अपने रिलेशंस को निभाइए। वेदांत में दोनों एस्पेक्ट्स बताते हैं, और फॉरेनर्स केवल रिलेशनशिप्स को बहुत ज्यादा जोर देते हैं। अब रिलेशनशिप्स जो हैं उनके 3 पहलू होते हैं। तो क्या होता है कि एक तो कुछ तो रिलेशंस टिकाना चाहते हैं पर टिक नहीं पाते, कुछ है जो कि नासमझियों की वजह से रिलेशनशिप टूट जाता है। आई डोंट नो हाउ टू बिहेव करेक्टली, माय कॉन्डक्ट इज इनकरेक्ट and therefore the relationship breaks. I don't want to break it. ना समझी की वजह से रिलेशनशिप टूट। और तीसरा क्या है कि हम लोग एक दूसरे के साथ समझौता कर लेते हैं कि ठीक है बाबा, you live your life the way you want, I will live, but we will live together for the sake of the children, for anything we will do a समझौता। तो इस तरह के जीवन में हम जो हमारे जीवन में जो लाइफ में जो जॉय होना चाहिए वो मिसिंग हो जाता है, क्योंकि हमारी रिलेशनशिप्स का हमने ठीक से उसको कंडक्ट नहीं किया। तो वेदांत क्या कहता है कि तुम समझदारी से संबंधों को तोड़ दो, समझदारी से। तो कैसे समझदारी से संबंधों को तोड़ेंगे? देखिए, पहली समझदारी तो ये है कि कोई भी 2 जन हमेशा के लिए साथ बंधे हुए नहीं है, हम में से एक पहले चला ही जाएगा। तो अगर हम अपने हस्बैंड को, या अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को रियली प्यार करता है तो उसको इंडिपेंडेंट बना देना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, नहीं, माय हस्बैंड शुड रिमेन डिपेंडेंट ऑन मी सो दैट ही इज ऑलवेज इन माय ग्रिप। तो हम लोग ही उनके भाई उनका सूटकेस भरेंगे, हम लोग रोज खाना ऑर्डर करेंगे, हम लोग उनको डिपेंडेंट बनाएंगे, जो कि वो कभी भी अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकते और अपने आप में खुश नहीं रह सकते। तो किस तरह से समझदारी से हमको रिलेशनशिप्स में थोड़ा डिस्टेंस लाना चाहिए कि मेक द अदर पर्सन सेल्फ सफिशिएंट। If I'm a wife, then it is the duty of the husband to tell me something about the business, about the bank accounts, about the policies which are being, which are there. So in all ways, we have to try to see that the other person becomes independent and self-reliant, so that the other person does not miss his spouse, his or her spouse. That way, we should start little moving away and making the other person self-reliant. You understand? Now, this I am talking on a very, very practical plane. Now comes the main sambandh जो हम लोगों ने बांध करके रखा है, and that sambandh is towards our own body. अपने शरीर के साथ जो हमारा गहरा संबंध है, वो ही हम सबसे पहले तो तोड़ने को या छोड़ने को या समझने को तैयार नहीं होते, क्योंकि
हम गहरी नींद से भी जगा करके आप बोलेंगे तो भी हम कहेंगे कि मैं ये बॉडी हूं, मैंने इसके साथ ऐसा संबंध बांध रखा है कि मैं 84 लाख योनियों के बाद भी इस संबंध को ढीला करने के लिए तैयार नहीं हूं। हालांकि मुझको रोज इसका मौका मिलता है। वो कब मिलता है? देखिए, जब हम सपने से जगते हैं तब इमीडिएटली सपना वो झूठा हो जाता है ना? जो कुछ हमने सपने में देखा था, उसी समय अगर हम अपने आप से पूछें कि वो सपना जिसने देखा था, जो उस सपने का साक्षी था, वो कौन है? रोज हमको ये मौका मिलता है और ये अवसर प्रकृति ने हमको दिया है। प्रकृति हमको सुलाती है। एक बहुत बड़ा हिंट प्रकृति हमको रोज देती है कि तुम एग्जामिन तो करो कि वो जो जिसने वो सपना देखा था, जो उस सपने का साक्षी था, वो कौन है? जो तुम बनी थी, जो अमला सपने में एक एक्टिंग कर रही थी, जो रोल प्ले कर रही थी, वो तो सपना टूटते ही खत्म हो गया था, है ना? लेकिन मैं तो बाकी बची हुई हूं ना, जिसने वो सपना देखा था, जिसको याद है कि एक वो सपना था जो कि झूठा था। अब क्या करते हैं, उस समय बेशक हमको थोड़ा सा एहसास रहता होगा, लेकिन हम इमीडिएटली उसको एक और इल्यूजन से उस स्पेस को भर लेते हैं। हम सच्चाई से उसको नहीं भरते, हम डिसइल्यूजन नहीं होते, हम एक और इल्यूजन, उससे भी बड़ा इल्यूजन हम अपने ऊपर थोप लेते हैं, और वो है जागृत अवस्था का इल्यूजन। वो हम थोप लेते हैं और हम कहते हैं कि ये जो है, ये जो हाड़ मास का है, यही मेरी रियलिटी है। तो हमको टाइम ही नहीं मिलता टू इंटरनलाइज द इंक्वायरी एंड रीच टू द बॉटम ऑफ इट। इज दिस क्लियर अबाउट सपना? अभी देखिए हमारा, अब आप देखिए, अगर आपको सचमुच मोक्ष की चाह है तो क्या आप अपने शरीर से रिलेशन तोड़ना चाहते हैं? क्या आप इस भाव में आ सकते हैं कि ना ये शरीर है मेरा, ना ये मोबाइल है मेरा? मोबाइल से आप नाता तोड़ना चाहते हैं? ना ये फ्रेंड्स है मेरे, ना ये दुश्मन है मेरे, सबसे नाता आप तोड़ना चाहते हैं क्या? All this I am saying just that we discover our truth, where I am standing. And if I need to go deeper, if I need to become more serious in my quest, then I may do it. Because हम लोग शब्दों में कहना सीख गए हैं, but reality में नहीं सीखे हैं। लेकिन हम लोग भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इसलिए ये वेदांत की खुशबू सारे वातावरण में हमको मिल ही जाती है। तो एक औरत, एक पत्नी अपने पति को बोलती है, घर छोड़े घर घर फिरे तो नहीं छोड़ो नाथ, पर घर छोड़े जो घर मिले तो अभी छोड़ना साथ। इवन द वाइफ इज रेडी। देखिए हमारे यहाँ क्या है कि औरतों के अंदर इतना ज्ञान कूट कूट करके भरा हुआ है, क्योंकि हमारा कल्चर ही ऐसा है। कल्चर इतना महान है कि इसका हर शब्द जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी गहराई है। अभी हम शरीर की बात करते हैं। शरीर, शरीर का क्या मतलब? द वन दैट इज कंटिन्यूअसली डिटीरियोरेटिंग। शरीर जैसे एक बर्फ का ढेला पैदाइश के बाद इमीडिएटली मेल्टिंग उसकी शुरू हो ही जाती है, उसी तरह से इस शरीर से जिसको कि मैं पकड़ के रखना चाहती हूँ, तो उसकी असलियत को नहीं जानने से हम अपने साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं।
सारे ह्यूमन बीइंग्स में एक इच्छा प्रबल रहती है कि हम अमर हो जाएं। तो हम अमर हो जाएं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने नियरेस्ट नेबर जो शरीर है इसको अमर बनाना चाहते हैं। देखिए, समझिए इसमें क्या इसमें सटलिटी ऑफ इंटेलेक्ट, कि मैं चाहती हूं कि मैं अमर हो जाऊं, लेकिन मैं अमरता की तरफ अपने कदम बढ़ाने की जगह इस शरीर को अमर बनाना चाहती हूं, जो कि मैं कभी नहीं हूं। रिद्धि, आर यू देयर विद मी? आर यू फीलिंग अ लिटिल स्लीपी? ओपन, अनम्यूट योरसेल्फ. No, You're not asleep. no. So has this logic sunk in you? Very you with nice, me? very nice logic. Okay. Okay. So now, so this is what I'm trying to say, कि मेरा पति, suppose there is a man who is behaving wrongly and I am unhappy because of his wrong behavior. So I will say that he must change. No, he is not going to change. You have to change. If you want to become Amar, you have to realize the divine tattva in yourself to become Amar, which you already are. But you want to make your sharir Amar. अब देखिए, जो मैं अपने कल्चर की बात बता रही हूँ कि शरीर तो ये है कि जो हर क्षण जो कि डिटीरियोरेट हो रहा है। अब दूसरा शब्द हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? देह। देह की रूट क्या है? दाह। This sharir is always fit for the flames. ये दाह के लायक है प्रभु। ये भी हमारे ऋषि मुनियों ने शरीर के नाम के अंदर पिरो दिया कि ये जो देह है ये दाह के लायक है, not anything more than that. It is a chola. After all, कपड़ा तो फटने ही वाला है ना। तो देखिए, हमारे जो गलत समझ है उसकी वजह से हम कहां कहां फंस रहे हैं। अब देखिए, सब लोगों ने, मतलब गुरुओं ने, शास्त्रों ने, ग्रंथों ने, गुरुबानी ने, सब ने बताया है कि ये जो संसार है ये स्वप्नवत है। लेकिन हम कहेंगे नहीं नहीं, ये लोग तो एग्जैजरेट कर रहे हैं, ये ठीक नहीं बोल रहे हैं, because my experience is not that. Therefore, all of them are wrong and I am right that this sansar is the truth. It is not an appearance. It is not स्वप्नवत. ये हम लोग पकड़ के बैठे हुए हैं। पर जैसे ही आप आत्म तत्व को जान लेंगे, तब इस जगत का प्रभाव आपके ऊपर एकदम कमती कमती हो जाएगा। और ये कब तक? देखिए, हम लोग हर काम जरूरत से करते हैं। जब हमको भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, है ना? और फिर जब हमको नींद आती है तो हम सो जाते हैं। जब तक हमारे अंदर अज्ञान है तब तक हमारी लालसा रहेगी कि हमको ज्ञान मिले। एक बार ज्ञान मिल गया हमको, तो उस ज्ञान की भी जरूरत हमको पकड़ के रखने की जरूरत नहीं। ठीक है? अब देखिए, एक और बात है कि इस संसार में कुछ भी करने के लिए हमको दोनों चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एंड द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो अगर हमको कुछ कल्याणकारी भी करना है, तब हमको जगत सत मान करके ही उसके अंदर कल्याणकारी कार्य करना है। लेकिन दिन भर काम करने के बाद हमको अपने तथ्य में लौट करके आ जाना है। हमको अपना अधिष्ठान कभी भी भूलना नहीं है। दूसरी बात है
जब इस संसार में सडनली हम दुखी हो जाएं, कोई भी ऐसे हालात आए और हम दुखी फील होने लगे, तो अपना ज्ञान हमको फिर से अपने दिमाग में ला करके रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश बटन होता है कि नहीं आजकल कंप्यूटर में, रिफ्रेश बटन। तो दुख लग रहा है, इसका मतलब हम अपना ज्ञान भूल गए हैं। वो दुख लगने मात्र से आप अपने आप को रिफ्रेश कर लीजिए ज्ञान में, ये चलता रहेगा, आपको आत्मबोध हो जाएगा। फिर भी माया इतनी प्रबल होती है कि कभी कभी वो दुख हमको महसूस होने लगता है। जब दुख महसूस हो तो that is an indication that we have to refresh our gyan. You understand? So don't become don't despair कि इतना ज्ञान सुनने के बाद में भी मुझे इस समय दुख लग रहा है। तो क्या हुआ, दुख लग रहा है तो हम उसको रिफ्रेश कर लेंगे, है ना। तो अब देख लीजिए कि प्रकृति ने हमको स्वप्न दिया, लेकिन गुरु हमको, प्रकृति ने हमको स्वप्न दिया हमको जगाने के लिए, लेकिन वो जगाना पूरी तरह से गुरु के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि द लॉजिक दैट वी हैव टू एम्प्लॉय टू बिकम स्थित इन द ज्ञान इज सो सटल that without a realized master we cannot do it ourselves. इतना सब जो इतना फाइन लॉजिक और इंटेलेक्ट था ऋषि मुनियों का, वो हम इस लाइफ टाइम में गृहस्थ जीवन में फंसे हुए हम खुद नहीं कर पाते। इसलिए हमको गुरु की और शास्त्र की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमको एक बहुत ही ऊंचे और फाइन धरातल पर इसको समझने की जरूरत है। तो अब हम एक और बहुत ही खूबसूरत बात मैं बताना चाहती हूं कि अभी देखिए, ये तो बात मेरे अज्ञान में, मेरे अज्ञान की वजह से दुख कारण बन जाता है, मतलब मेरा अज्ञान मेरे दुख का कारण बन जाता है। जैसे कि नींद सपने का कारण बनती है, वैसे ही मेरा अज्ञान जो है वो दुख का कारण बनता है। जैसे नींद सपने का कारण बनती है, वैसे ही अज्ञान मेरे दुख का कारण बनता है। हम है चैतन्य, पर अपने को हम मान बैठे हैं देह, और ये जो कपड़ा है इसमें लग गई है गांठ। या तो तुम गांठ को खोलने बैठ सकते हो, या इस शरीर का भ्रम ही छोड़ दो और इसी समय चैतन्य हो जाओ। हजारों सपने एक ही उनका निदान है, जग जाना। हजार दुख हैं, संसार से जग जाना, और इमीडिएटली वो सब एक साथ खत्म हो जाता। तो गांठ का होना ये हमारे जीवन में सच्चाई है। गांठ का सोना, वो गांठ सो गई, और फिर गांठ का खोना ये भी हमारी सच्चाई बन सकता है, और ये ही है आत्मज्ञान। ठीक है, इस गांठ का होना ये भी हमको महसूस होता है, और गांठ के होने में हम लेजी हो गए हैं, हम सोए पड़े हैं, और कितने 84 लाख योनियों से सोए पड़े हैं। लेकिन गांठ को खो भी सकते हैं और चैतन्य में जग सकते हैं। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल instantaneously. This is what he's saying, and this is why we have been given the example of swapna.
तो अब हम 7वें श्लोक पर आ जाते हैं और प्लीज कुछ लोग अपने आप को अनम्यूट, हाँ बोलिए, अनम्यूट यू, वी कांट हियर यू। हाँ हाँ बोलिए। I can't hear you. I can't hear you, my dear. I don't know. Shall we keep it for a? Huh? Okay. Tavat satyam jagat तावत् सत्यं satyam jagat bhati जगत् भाति shuktika rajitam rajatam शुक्ति rajatam yatha yavat yatha यथा sorry shuktika rajatam yatha श्रुति कारयजतं यथा यावत् न ज्ञायते ब्रह्म यावत् ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठानम् अद्वयम् सर्वाधिष्ठानम् अद्वयम् अद्वयम्। अद्वयम् The world appears to be real as long as the Brahma, the non-dual substratum of the entire creation, is not realized. It is like the illusion of silver in the mother of pearl. तो यहाँ पर पिक्चर कौन सी उन्होंने दी है कि एक सीपी के अंदर जो बहुत चमकदार चांदी जैसी चमक होती है, तो वो जब तब तक हमको लुभाती है जब तक हम ये नहीं जानते कि ये सीप है और इसमें चांदी का कोई अंश नहीं है, तब तक हम उसकी तरफ ड्रॉ होते हैं। The world appears to be real as long as the Brahma, the non-dual substratum of the entire creation, is not realized. जैसे कि चांदी की जैसे कि सीपी की चांदी की तरफ जो हमारा अट्रैक्शन होता है वो तब तक रहता है जब तक हम उसको उसकी रियलिटी नहीं देख लेते। देखिए, ये जो जगत हम एक्सपीरियंस करते हैं ये 3 स्टेट्स के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कौन सी 3 स्टेट्स? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन 3 स्टेट्स के थ्रू हम इस जगत को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इसके साथ में हमारे जो सेंसेस से हमको सब प्लेजर्स हमको फील होते हैं, एंजॉयमेंट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, all this is because of the mental sheath that is around us. The concepts, the opinions of the intellectuals all constitute this world for us. आज हम जिस तरह से इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स, हमारी ओपिनियंस, वो भी एक पार्ट प्ले करती है। अब मैं आपको एक और धरातल पर ले जाती हूँ कि जो कुछ भी ये संसार में है आज वो हमारा मेंटल प्रोजेक्शन है। कैसे? आप कहेंगे ये थोड़ी है, ये स्थूल जगत है ना। अब मैं कविता जी से पूछना चाहती हूँ जो हर एक रोज कुछ नया क्रिएट करती है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप क्रिएट करती हैं उसके पहले आप उसकी एक पिक्चर आपके माइंड में आती है कि नहीं? बिल्कुल, वो पहले एक जैसे कि मेंटल तस्वीर बनती है, फिर उस तस्वीर को आप रेखांकित करते हैं। उस तस्वीर को आप रेखांकित करते हैं। हाँ हाँ, जितनी पूरी सिविलाइजेशन आज तक हुई है वो हमारे मेंटल प्रोजेक्शन की वजह से हुई है। Absolutely. पहले हम लोग गुफाओं में रहते थे, फिर हम लोग को एक माइंड में आया कि आई कैन मेक अ गुफा लाइक स्ट्रक्चर, लाइक अ हाउस। तो हम लोगों ने झोपड़ियां बनाना शुरू कर दिया। वो जो झोपड़ी है वो मेरे खेत में ही हो सकती है, तो मेरे को इतनी दूर गुफा से आने की जरूरत नहीं हुई। वो ही झोपड़ी आज 100 स्टोरीज की बिल्डिंग बन गई है,
वो कहाँ से निकली है? वो मेरे माइंड से ही निकली है, माइंड तत्व से निकली है। जो कुछ भी इस संसार में है वो माइंड तत्व से निकली। आज मैं अपने आज की रूटीन का जो मैं अगर सोचने चलूं कि मैं क्या करती हूँ, पहले एक थॉट आता है कि भाई मुझे यहाँ पर एक नई टेबल खरीदनी है। ये थॉट आया, उस थॉट की वजह से मैंने अमेज़न में देखा, मैंने फर्नीचर की दुकानें देखा, फिर मैं जाकर के खरीद के लाई और वहां यहाँ पर रख दिया। कहाँ से शुरू हुआ? एक मेंटल थॉट की वजह से। जो कुछ भी ये पूरा संसार है, जितने भी इसके अंदर इन्वेंशन हुए हैं, all that is a mental projection. You understand that? So this whole world, जैसे सपना एक मेंटल प्रोजेक्शन था। सपने में कोई थे क्या? कोई हाड़ मांस के पुतले थे क्या वहां पर? आपके माइंड ने सारा क्रिएट करा था। ऐसे ही ये सारा संसार भी आपका मेंटल प्रोजेक्शन है। इस बात को फिर भी आप कहेंगे कि नहीं, ये तो ग्रॉस है। अब आप देखिए साइंस क्या कर रही है। साइंस कह रही है कि ये जिसको कि तुम पत्थर बोल रहे हो और ये ग्रॉस समझ रहे हो, ये तो ग्रॉस है ही नहीं। इसके अंदर तो मूविंग एटम्स हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। और उसके अंदर कितनी स्पेस है? कितनी स्पेस है? 99.6% is space in something which is as solid as stone. तो जब हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि उस चैतन्य तत्व के ऊपर ये एक अपीयरेंस है, तो आज जब मैं इस लेक्चर के लिए तैयारी कर रही थी, तब मेरे को एक बहुत ही सुंदर भाव आया था, वो मैं आपके साथ में शेयर करना कि कभी आप ऐसा महसूस करिए कि मैं वो ब्रह्म तत्व हूं जिसके ऊपर की ये लाइफ अपीयर हुई है और ये फॉर्म अपीयर हुआ है और इस फॉर्म ने ये पर्टिकुलर कपड़े पहने हैं और मैं जो ब्रह्म तत्व हूं उसके अंदर अनंत लाइफ इसी तरह से पैदा हूं। मैं ये एक लाइफ नहीं हूं, मैं ये एक फॉर्म नहीं हूं। तो कभी अपने साथ बैठ करके ये एक प्रोजेक्शन करिए अपना माइंड का, जैसे आप इतनी और क्रिएशंस करती हैं, इस सीन को आप बिल्ड करिए। जैसे कि पहली बार ज्ञान सुन करके ही जनक क्या कहता है कि मुझ अंतहीन समुद्र में ये विश्व लहरें उठ रही। मुझ अंतहीन समुद्र में, यही शब्द आप अपने साथ इस्तेमाल करिए। मुझ अंतहीन समुद्र में ये विश्व लहरें उठ रही, स्वभाव से ये हो उदय, स्वभाव से ये हो विलय। अपने आप ये उठ रहे हैं। कॉस्मोस, इस कॉस्मोस में एक प्लैनेट उठ रहा है और वो अपने आप, और इसमें किसका बहुत बड़ा रोल है? समय का बहुत बड़ा रोल है। और फिर अपने ब्रह्मपने में आप इस अवस्था में आ जाएंगे कि आप ये फील करेंगे कि आई एम बियॉन्ड टाइम, बिकॉज आई कैन नो टाइम, एंड आई एम बियॉन्ड टाइम because time does not affect me, because that Brahma Tattva, that substratum, it always is, it is eternal, which brings us to the next sutra, shloka, which is 8th. Now we are on the 8th shlok. Upadane, can you please repeat? Upadane उपादाने अखिलाधारे खिलाधारे जगन्ति जगन्ति परमेश्वरे परमेश्वरे सर्ग स्थिति लयान यान्ति
सर्वसिद्धि दयायानान्ति बुद्बुदानि बुद्बुदानि इव वारिणी। वारिणी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस जगत का उपादेय जो है, उपादेय का जो है, जो इसका कारण है, वो जिसने कि इस जगत को धार रखा है, वो परमेश्वर है। Like bubbles in the water, the worlds rise, exist, and dissolve in the supreme self, which is the material cause and support of everything. अभी ये देखिए, यहाँ पर आप हिंदुइज्म की महानता को आप एक्सपीरियंस करिए कि और किसी भी रिलीजन में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि सब कुछ वो डिविनिटी है। अभी देखिए, अ बिब्लिकल गॉड, तो इट इज नॉट बाय चांस that in the biblical, all the religions connected to the biblical this text, उसके अंदर God नाम दिया है। God comes from the word good. Okay, so they believe कि everything that is good is God, and what is not good is Satan. लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की सोच कहाँ तक पहुंची कि एवरीथिंग इज वन डिवाइन तत्व, जो अधिष्ठान है, जिसने कि इस संपूर्ण सृष्टि को धारण कर रखा है। कैसे? जैसे कि एक पॉटर जो है, एक कुम्हार है, वो अपने चाक के ऊपर वो घड़े बनाता है, पॉट्स बनाता है। तो पॉट्स किससे बनाता है? मट्टी से पॉट्स बनाता है। उसका जो व्हील है, उसके ऊपर पूरी मट्टी भरी रहती है, उस मट्टी से वो पॉट्स बनते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज क्रिएट करनी होती है तो उसमें 3 चीजें लगती हैं। 3 टाइप्स ऑफ कॉजेस। एक तो है मेटीरियल कॉज, एक है एफिशिएंट कॉज, और एक है इंस्ट्रूमेंटल कॉज। तो कुम्हार के केस में जो एफिशिएंट कॉज है वो तो कुम्हार है, जो मटेरियल कॉज है वो मिट्टी है, और जो इंस्ट्रूमेंटल कॉज है वो उसका चाक है। लेकिन कॉस्मोस के क्रिएशन में जो एफिशिएंट कॉज है और जो मटेरियल कॉज है वो ही ब्रह्म तत्व है, वो एक ही है। और क्यों वो एक है? कुम्हार तो जड़ चीजें बनाता है, लेकिन ये इस संसार में क्या सारे प्राणी जड़ हैं? हम लोग सब तो कॉन्शियस बीइंग्स हैं। इसलिए किस मट्टी से बनने पड़ेंगे? एक कॉन्शियस मट्टी से उसको बनाना पड़ेगा। और वो कॉन्शियस मट्टी क्या है? वो एक ही डिवाइन तत्व। इसलिए ये पूरा संसार, ये पूरा कॉस्मोस, ये पूरी गैलेक्सीज, ये पूरी मिल्की वेज, ये सब कुछ एक कॉन्शियस चैतन्य मट्टी से बनी हुई है। और वो खुद ही वो मट्टी बना है, क्योंकि उसके सिवा सेंशिएंट थिंग कुछ भी नहीं है। स्टफ, द स्टफ आउट ऑफ विच दिस एंटायर creation is made is a conscious sentient life force। क्योंकि भगवान केवल जड़ चीजों को नहीं बना रहा था, भगवान सेंशिएंट बीइंग्स को क्रिएट कर रहा है। इसलिए उसको जो मट्टी इस्तेमाल करनी पड़ी वो भी सेंशिएंट मट्टी है। और सेंशियंस और कहीं है नहीं सिवाय की परमात्मा तत्व में। इसलिए वो खुद ही वो मट्टी बन गया जिसके ऊपर की ये सारी सृष्टि पैदा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर
उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि जैसे पानी के अंदर से बुदबुदे निकलते हैं, ये पिक्चर बनाई। तो देखिए, पानी के अंदर से लहरें उठी, लेकिन जब लहर एकदम ऊंचाई पर थी, सुनामी थी, तब भी वो पानी ही थी ना, या कुछ और होती? सुनामी हमने नाम दिया था, लेकिन थी वो अंदर पानी ही। फिर जब वो सी शोर पर आई और वो बबल्स उसमें बन गए, तब वो जो बबल्स थे वो उस समय पानी ही थे या कुछ और थे? उसका पानी पना कभी भी कम हुआ क्या? उसका पानी पना कभी कम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये खूबसूरत उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो जो बुदबुदे उठते हैं, उसी में से उठते हैं और उसी में लय हो जाते हैं। और यही पिक्चर आपने अपने साथ भी बनाई कि मुझ अंतहीन समुद्र में से विश्व लहरें उठ रही, स्वभाव से वो हो उदय, स्वभाव से वो हो विलय। ठीक है कि नहीं? ये पिक्चर आप अपने साथ बैठ करके कभी इसको इमेजिन करिए, तब आपको इस भाव में उतरने में आसानी होगी। अब देखिए 9th श्लोक है, सच्चिदात्मनि अनुच्युते अनुष्यते अनुच्युते अनुसूयते अनुस्युते अनुसूयते अनुसूयते नहीं है, अनुस्युते अनुष्यते स्युते नित्ये नित्ये कृष्णौ कृष्णौ प्रकल्पिताः प्रकल्पिताः व्यक्तयः यः विविधाः सर्वाः विविधाः सर्वः हाट के कटकादिवत। कटकादिवत्। हाँ, इसमें उन्होंने क्या पिक्चर दी कि जैसे सारे गहने सोने के ही बनते हैं, सोने के ही गहने बनते हैं, उसमें सोने के सिवा और कुछ नहीं होता, उसी तरह से ये सच्चिदानंद में से फैब्रिकेट होकर के ये पूरा जगत बना है। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि सूत के समान मैं सब में हूं, और वो जो अलग अलग मणियां माला में दिखती हैं, वो मणि, एक एक मणि उसी सूत की ही बनी हुई है, इंटरवोवन फ्रॉम द परमात्मा तत्व इज दिस एंटायर क्रिएशन। जब तक हमको इस क्रिएशन की हर एक चीज में खूबसूरती नहीं दिखेगी, वो परमात्मा की डिविनिटी नहीं दिखेगी, एक कॉकरोच में भी जब हम उसकी सुंदरता देख सकेंगे, तब मेरे अंदर भक्ति भाव जगेगा, जो गुरुदेव ने पहले कहा। Then I will be truly humbled that every aspect of creation is so miraculous, because he himself is manifest in the entire creation. It is on that substratum, out of that substratum, it is divinity itself, that this entire creation has come about. Vyaktayaha vividhaha, all the various beings are made out of that one thing. Prakalpita, projected. प्रोजेक्टेड का मतलब जैसे एक प्रोजेक्टर के अंदर से प्रोजेक्शन का नहीं भाव करिए, उसके अंदर से निकलता है। इट इज प्लेस्ड ऑन द, he himself has placed himself in this entire world as so many different forms.
इट इज जैसे कि कपड़ा जो है वो पूरा कपड़ा धागे से बना हुआ है, ताना और बाना दोनों के मिल करके, इट इज इंटरवोवन, that divinity is interwoven in the entire firmament of this cosmos. There is nothing other than that. There is no scope for there being anything other than that. और वो कैसा है? वो नित्य है और विष्णु है। तो विष्णु से यहाँ पर विष्णु भगवान का 4 हाथ वाले विष्णु भगवान की कल्पना मत कीजिए। विष्णु मतलब ऑल परवेडिंग, दैट तत्व इज नित्य, इटर्नल, ऑलवेज देयर, एंड इट इज ऑल परवेडिंग। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जो लॉजिक ऋषि मुनियों ने इस्तेमाल करा था वो इतना सटल है कि हम लोग अपने रोजमर्रा के ये जो गृहस्थी का जीवन हम लोग जीते रहते हैं उसमें हम उसको ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको गुरु की जरूरत है, शास्त्रों की जरूरत है, ग्रंथों की जरूरत है, अपना मन उसमें लगाने की जरूरत है, तब हमारे ग्रास्प में ये आएगा। तो हमारी प्रार्थना गुरु से क्या होनी चाहिए कि गुरु आप हमें जगा दें, और ऐसा जगाएं कि बाद में मैं सोऊं नहीं। और फिर भी गुरु कहता है कि अगर तुम सोए और तुमको दुख फील होने लगा तो तुम रिफ्रेश बटन दबा देना, और इस ज्ञान का रिफ्रेशमेंट करके और रिफ्रेश करके, इस ज्ञान से अपने आप को रिफ्रेश करके दुख का निवारण खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये आत्मबोध पुस्तक ऐसी है जिसमें कि जो प्रॉमिस करती है कि आपके जीवन में दुखों का नाश और परम आनंद की प्राप्ति आपको होगी। तो आज हम लोगों ने ये 4 श्लोक करे और उन चारों श्लोकों में एक एक पिक्चर दी इन्होंने शंकराचार्य ने, जिसकी वजह से ये आत्मबोध पिक्चर बहुत ही लोकप्रिय है। सब लोग इसको पढ़ना चाहते हैं because it has been made interesting with so many metaphors and similes. Understand? तो एक तो वो पहले तो उन्होंने कहा कुम्हार के चाक के जैसे सर्व का अधिष्ठान है वो, और फिर उन्होंने कहा कि जैसे सोना। अब सोने का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि सोना जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल है, उसको फेंकने लायक नहीं है। हर एक चीज को हम अपनी जिंदगी में अप्रोच कैसे करें? एज दो इट इज डिवाइन। चाहे हमारे सेवाधारी हो, उनको हम कैसे अप्रोच करें? एज दो दे आर डिवाइन। तब हमारी सृष्टि, हमारी दृष्टि में जब वो डिविनिटी भर जाएगी, तब हम इसकी तरफ मूव करें। तो टाइम हो गया है, अब कोई भी कुछ बोलना चाहे जिसमें कि अभी प्रश्नों को हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट सेशन के पहले आप अपने प्रश्न रखिएगा, और उस समय हम लोग जो 15 मिनट मिलते हैं 3:45 से 4, उसमें आपके प्रश्नों का आंसर कर देंगे। अभी किसी को कोई बात टच करी हो, खाली वो बात रिफ्रेश बटन दबाएं। रिफ्रेश बटन दबाएं। ठीक है, रेखा जी आज आई है क्या? नमस्ते आमला जी, मेरे को बहुत ये करा जो सेल्फ रिलायंट आपने बोला ना, उससे अटैचमेंट्स विल गो अवे। अब द रिलेशनशिप यू टोल्ड की रिलेशनशिप कैसे वी आर वेरी अटैच्ड इन डिफरेंट रिलेशनशिप टू द थिंग्स। तो व्हेन वी बिकम सेल्फ रिलायंट एंड नो मतलब स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि इसकी अब जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आई really realized when you explained it. So उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का मतलब समझ में आने लग जाता है। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो जाती है, चाहे कुछ भी चीज हो, एनीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट्स मनी, वेदर रिलेशनशिप, वेदर हस्बैंड, वेदर चिल्ड्रन और एनी अदर रिलेशनशिप। करेक्ट। That point I really found it very मतलब very nice. It hit me very nicely.
Padmaji ji, would you like to say something? Any point that you thought was? Anupama ji, would you like to say something? You are not getting muted somehow. I think your Wi-Fi is weak today, so I can't. We can't hear you. Manju, would you like to say something? Anybody would like to say something? मुझे आज मेंटल प्रोजेक्शन बहुत क्लिक किया हाँ. कि मेंटल प्रोजेक्ट जैसे एवरीथिंग इज माइंड का ही क्रिएशन है, तो जब आप भगवान का कहा तब मैं सोची कि मेंटल से ही हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, राग ये सब उसी का क्रिएशन है. हाँ. फर्स्ट कि हाउ कैन वी कन्वर्ट इट, उसको Yes. चेंज के पॉजिटिव थिंकिंग में ला सकते हैं. और ये बहुत सुंदर आपने बोला, जब हम हर चीज में भगवान की छवि देखेंगे तो ये सब कुछ आएगा ही नहीं, ना दिमाग में ना प्रोजेक्ट होएगा. हाँ. तो रियली क्लिक. मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ एक सेवाधारी को गुटखा खाने की बहुत ही ज्यादा आदत हो गई थी, तो मैं कई दिनों से उसके साथ में जूझ रही थी कि भाई देखो तुम अपना नुकसान कर रहे हो ये वो. लेकिन इस बार क्योंकि मैं इतना ज्यादा इस भाव में आ गई हूँ, तो मैंने उसके अंदर की डिविनिटी जगा करके उसको बोला और मैंने कहा कि तुम भरसक कोशिश करो और जरूर तुम इसको अकम्प्लिश कर पाओगे, तुम छोड़ पाओगे, और मैं रोज तुम्हें प्रणाम करूंगी अगर तुमने एक एक दिन एक बार लिव वन डे एट अ टाइम. तो अगले दिन सवेरे मैंने उसको प्रणाम किया और उसके ऊपर इस चीज का इतना बड़ा असर हुआ कि वो काफी हद तक इस तरफ बढ़ चुका है, यू नो. तो उसके अंदर के डिविनिटी को जगा करके ही हम किसी भी इंसान के अंदर कोई चेंजेस ला सकते. वेरी ट्रू. डिवाइन इज इन एवरी. Yes. बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी और बात है. आमला जी, आपने जो रिफ्रेश बटन का बताया, बार बार हम पीछे क्यों आते हैं? आप सोचते हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी हम गिर जाते हैं, समझ नहीं पाते. तो बट दैट एग्जांपल कि आप रिफ्रेश बटन बताइए, अपना ज्ञान समझिए, तो आपको तुरंत समझ में नहीं तो कोई बात नहीं है ना. हाँ. पहले थोड़े इंटरवल विल बी लेस when you have to press the refresh button, लेकिन फिर बाद में इतना लंबा अंतराल चला जाएगा, आपको रिफ्रेश बटन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. हम कितने देखिए 84 लाख योनियों से हम लोगों ने इस शरीर को ही सच माना है और इसके सुख दुख से ही हम चिपटे हुए हैं, असंग नहीं हुए हैं. असंगो हम पुनः पुनः का पाठ हमने पक्का नहीं किया है, तो समय तो लगेगा ना. बताइए. वेरी नाइस. जो ड्रीम का भी बताया कि कैसे जाने की आई एम नॉट बॉडी, दैट वाज आल्सो वेरी गुड. कि आपने कहा कि जब स्वप्न से उठते हैं तो एक सेकंड तो मिलता ही है सुबह की मैं कौन था जानने के लिए, पर हम इतना तुरंत बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं कि हम उसको भूल ही जाते हैं. हाँ. That was also a very nice point. तो रेखा जी से मैंने एक बात कही थी कि जो भी चीज आपको ऐसे अनयूजुअल लगे उसको आप रेड में नोट डाउन करा करिए. then you will have lot of matter which you can share, and when you share it will have more impact on the people who are listening. So then she has followed that and see how many points she has gathered for herself. So I would request, since you all are all making notes, those points which you find unusual and that those that have touched you deep within, make a note of them in red so you can share with everyone. तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं. आप सबको बारंबार प्रणाम. आप सबको नतमस्तक होते हुए मैं आज का ये सेशन समाप्त करती हूँ. थैंक यू अमला जी, थैंक यू. Thank you. देखिए फिर कोविड शुरू हो गया, अपना क्लास चल रहा है तो मन लग रहा है. हाँ सच्ची, अब तो सब वापस घर में बैठे हैं. अपना कल्याण करने के लिए ये हो रहा है. बताइए. हाँ तो अब तो 1 दिन से 2 दिन कर दीजिए. दूसरे दिन कोई भजन सुना दिया करिए. आपको तो पकड़ लिए हम लोग. कहाँ है आप?
आप अभी तो कहाँ पे? अलीबाग में हूँ, लेकिन अब जाने वाली हूँ। अरे क्यों जा रही है बम्बई? अलीबाग ही रही है, बम्बई तो भरा हुआ है। हाँ है तो। ओके। ओके बाय। Bye.